Good afternoon, everyone. Pediatric Center of Excellence, MCH Kolkata, welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is treatment failure in children, and the speaker is Dr. Kalpana Datta. Dr. Kalpana Datta, ma'am, is the Program Director for Pediatric Center of Excellence and the Professor and Head of Department for Pediatrics at the Medical College Hospital, Kolkata. She is also the in charge of Adolescent Clinic at MCH. She is a national trainer for malnutrition, pediatric HIV, early child development, and the National TB Elimination Program. She has authored numerous papers published in both international and national journals. We welcome you, ma'am, for today's session and request you to start the session. Okay, thank you, Ms. Shweta, and very good afternoon to everyone. Today I'll be talking on treatment failure in children, and at the outset I should say sorry for delay because I was having lots of programs and inspection in our department, so I was a bit delayed. Okay, so today I'll be talking treatment failure in children, and I'll try to do it in a local languages so that all the centers would understand. And I'll request all the participants who are there, please put questions from very beginning, what are the inquiries we have, and this is a good golden opportunity to clarify your any doubts. So by the end of this session, we'll be knowing the follow-up and monitoring of child living with HIV after ART initiation. तो ART शुरू करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा और ज़्यादा बढ़ जाता है. तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो दवा ठीक से खा रहा है कि नहीं, कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं, कैसे है, सब उसको हमको फॉलो अप करना है एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में रखना है, बोथ क्लिनिकल एंड इन्वेस्टिगेशनल और बायोकेमिकल और वायरोलॉजी, वॉट एवर द इन्वेस्टिगेशन विल डू, हम लोग को करना है रेगुलर इंटरवल में. डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर इन चिल्ड्रन लिविंग विद HIV. हम लोग देखें जब कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग होती है तो ट्रीटमेंट फेलियर, स्विच, सब्स्टिट्यूशन, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है पार्टिसिपेंट्स में. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो क्लियर आइडिया, क्लियर डेफिनेशन, किसको हमको स्विच बोलते हैं, किसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, कब हम फर्स्ट लाइन फेलियर बोलेंगे, कब हम ट्रीटमेंट फेलियर बोलेंगे, कब हम सेकेंड लाइन फेलियर बोलेंगे, कब इम्यूनोलॉजिकल फेलियर और वायरोलॉजिकल फेलियर. तो ये डेफिनेशन हमको क्लियर होना है. सेकेंड लाइन ART रेजिम क्या है, कब देना है, क्या ड्रग चूज करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. So HIV treatment in children is critical to suppress viral replication, improve immune function, and reduce morbidity and mortality. So most important cornerstone of treatment is the HIV treatment and by antiretroviral therapy. तो ART यदि हम लोग शुरू करें कि appropriate time में, today only just I told you कि please hold me for 2 minutes. तो वो मेरा एक नया patient, today only I got one patient from out of the state, some neighboring state, and mother was diagnosed at the time of delivery. Father was positive for a long time, and by that, and mother was not on ART, baby was not on ART, and having 2 kids, one 6 years, one month. So I was just watching this baby just now. So this is very important to start the ART. And वो cornerstone क्यों है? Why it is a cornerstone of the treatment? Because ART only drug जो viral replication को suppress करता है. If there is a suppression of the viral replication, तो क्या होगा? Immunity improve करेगा. And you know, in pediatrics the immune system जो है वो immature है. It's go and maturing till it grows up to the adult level. तो वो maturation process में है. इस प्रोसेस में जब हम कोई हैमर करते हैं तो ज़्यादा डिफेक्टिव होता है. इसलिए हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो, स्ट्रांग हो, बूस्ट हो. तो वायरल रेप्लिकेशन यदि सप्रेस करें तो देयर विल इम्यून डिप्रेशन. इम्यून इम्प्रूवमेंट होगा तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कम होगा. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड अदर कॉमन इन्फेक्शन यदि कम हो तो उन लोगों का फीवर कम होगा, इन्फेक्शन कम होगा, वेट गेन होगा, स्कूल ड्रॉपिंग कम होगा. इसकी वजह से क्या होगा ना, रिड्यूस द मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी. तो हमारा HIV का ट्रीटमेंट ART एप्रोप्रिएट टाइम में स्टार्ट करके वी कैन डू ऑल दोज थिंग्स. एंड ट्रीटमेंट फेलियर कैन ऑकर, वो पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, पर पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट फेलियर हो ही सकता है इवन, एंड वी लुक फॉर द कॉजेस. तो हम लोग उसमें सेकेंड लाइन स्विच कर सकते हैं. तो वी विल डिस्कस ऑल दोज थिंग इन दिस सेशन. तो व्हाई वी आर कंसर्न, बिकॉज इन पीडियाट्रिक अनयूजुअली हाई बेसलाइन वायरल लोड. अब जब शुरू करेंगे तभी काफी वायरल लोड ज्यादा रहता है, तो इट विल टेक टाइम. तो हम लोग जितना डिले करेंगे उतना डैमेज ऑलरेडी हो चुका है. एंड बच्चों में यह है ना, एक बार जो डैमेज हो गया बिकॉज इट्स मैच्योरिंग सिस्टम, स्पेशली नर्वस सिस्टम विच इज मैच्योरिंग, तो उसमें यदि हमारा डैमेज हो गया वो रिकवर और नहीं हो पाएगा.
इसलिए हम लोग को जल्दी से ईआरटी शुरू करना होता है। एंड बेसलाइन हाई वजह से क्या है, इंट्रायूटेराइन पेरिनेटल एक्सपोजर टू एआरवीज। तो बिकॉज मैक्सिमम ट्रांसमिशन इज वर्टिकल ट्रांसमिशन, तो जिसमें मम्मी मदर का मदर ईआरटी ले रही होंगी, सो बेबी हैज बीन एक्सपोज इन द इंट्रायूटेराइन पीरियड all those drugs, like we know the nevirapine, then we can't give the nevirapine because they'll be archived for this and the chances of resistance are there. देन इमेच्योर एंड डेवलपिंग इम्यून सिस्टम बच्चों का होता है, सो वो भी एक फैक्टर है कि हम लोग को प्रॉब्लम होती है, देयर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। डिपेंडेंसी ऑन केयर गिवर फॉर एडहेरेंस सपोर्ट, बच्चे को मम्मी या केयर गिवर, प्राइमरी केयर गिवर, सेकेंडरी केयर गिवर दवा पिलाएंगी, दवा खिलाएंगी तभी तो वो खाएगा। तो डिपेंड करता है वो केयर गिवर कितना सिंसियर है, कितना एफिशिएंट है, कितना टाइम दे सकता है, वेदर शी इज और ही इज प्री ऑक्यूपाइड विद अदर वर्क, तो इस पे डिपेंड करता है वो। तो ये भी एक फैक्टर होता है। देन डायनेमिक डोजिंग एंड वेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा से भी बीमार पड़ता है बच्चा का वजन घट जाता है, थोड़ा न्यूट्रिशनली ठीक होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल होता है तो वेट गेन हो जाता है। सो ये इज नॉट अ कांस्टेंट, लाइक हमारे एडल्ट में क्या होता है, एक बार 30 kg तो 30 kg, 50 kg तो काफ़ी दिन तक 50 kg रहा, ऐसा नहीं, ये मंथ में चेंज हो जाता है बच्चों का वेट। एंड तो हम लोग का इसलिए बच्चों का वेट के अनुसार हम लोग का डोज फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वेट डिक्रीज कर रहे तो डोज भी डिक्रीज करेगा, वेट इंक्रीज करे तो डोज भी इंक्रीज करना है। सो दिस इज डायनेमिक डोजिंग and we should not forget about weighing the child and modifying the dose. And of course non availability of child friendly formulations, तो बच्चों का सिरप चाहिए तो सिरप नहीं है, टैबलेट है और कुछ कोड नहीं है, या बिटर टेस्ट है, लाइक पीरियड्स है, सो इट्स नॉट द समटाइम्स द ऑल द ड्रग्स आर नॉट चाइल्ड फ्रेंडली, तो वो लोग लेना नहीं चाहता है, बेल्टी कर देता है, रिफ्यूज करता है। ये सब हमारा hurdles है to get the good result after antiretroviral therapy. So causes of treatment failure. The most important cause is the adherence issue. Non-adherence to ART is a major factor, and children may have difficulties with adherence due to taste, pill burden, lack of understanding. There are many reasons for non-adherence for the children. Not only the taste और pill burden और दवा के बारे में समझ नहीं है, HIV के बारे में समझ नहीं है, और समटाइम्स क्या होता है ना, टाइमिंग ठीक नहीं है, स्कूलिंग टाइम ठीक नहीं है, अचानक से कोई न्यू क्लासेस शुरू हो गया, न्यू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी शुरू हो गया, कोई प्रोग्राम्स हो गया, या जो पिला रही है घर में जो केयर गिवर है उसका टाइम नहीं है, घर में कुछ काम आ गया। जैसे काफ़ी हम लोग सुनते हैं कि गाँव गए थे, वहाँ शादी थी, तो उस वक्त हम खिला नहीं पाए बच्चों को। तो ये सब इश्यूज तो हम लोग को फेस करना पड़ता है, एंड ये हम लोग को उन लोगों को एम्पावर करना है हाउ टू टैकल ऑल दो सिचुएशन एंड कैन give the drugs in proper time so that compliance will be good. तो adherence issue is a big issue in pediatrics. Then of course drug resistance, जैसे हम लोग देख रहे हैं काफ़ी drug resistance आ रहा है एडल्ट में, बच्चों में भी हो सकता है। HIV can develop mutation because reverse transcriptase काफ़ी error prone है, कभी भी कुछ mutation हो सकता है, and then some drug may not act. Pharmacokinetics. This is again very important point. Difference in drug absorption, metabolism, excretion children can lead to suboptimal drug levels. तो pharmacokinetics जो है ना, बच्चों का न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है। इफ देयर इज सीवियर malnutrition, that can hamper the absorption, that can hamper the metabolism also, even some there may be kidney compromise, तो excretion में भी प्रॉब्लम होता है। तो एक बच्चे के साथ यदि malnutrition है, यदि कोई डायरिया है या कोई वॉमिटिंग है, तो कंप्लायंस कम होगा, इंजेक्शन कम होगा, तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो हम लोग को जब बात करेंगे एडहेरेंस के बारे में, कंप्लायंस के बारे में एंड ट्रीटमेंट फेलियर के, हम लोग ये भी पॉइंट्स हम लोग याद करेंगे। Then co-infection and malnutrition, as I already said, many co-infection might be there that may hamper the intake of the drug, or also the pharmacokinetics can be changed due to the co-infection and malnutrition. Now हम लोग आफ्टर इनिशिएशन स्टार्ट ART, हम लोग ART स्टार्ट किए, देन पैरामीटर्स क्या क्या हम लोग मॉनिटर करेंगे, इनका आपको फॉलो अप करेंगे, ये हम लोग को देखना है। क्लिनिकल मॉनिटरिंग, लेबोरेटरी मॉनिटरिंग, इम्यूनोलॉजिकल एंड वायरोलॉजिकल टेस्टिंग विल बी डन। तो क्लिनिकली हम लोग देखेंगे बच्चे का ईच एंड एवरी विजिट, हाइट क्या है, वेट क्या है। हाइट immediately एक दो मन में चिंत नहीं होगा, so usually in the older age we will see the height in every 6 months, and younger children we see in the 3 months time, but weight every month। तो हम लोग वेट देखेंगे,
क्लिनिकल इवैल्यूएशन करें, कोई फीवर है, डायरिया है, निमोनिया है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, पेन एब्डोमेन है, वॉम इन्फेस्टेशन है, कुछ भी हम लोग वॉलेंटरली ये सब पूछेंगे। अदरवाइज हम लोग पूछे आपको कोई तकलीफ है, वो बोलेगा नहीं कुछ तकलीफ नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ तकलीफ वो लोग इग्नोर करते हैं। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विल आस्क देम टू वेदर दिस थिंग्स आर देयर और नॉट। जैसे कोई ग्लैंड फुल है, वो तो वैसे ही घाव हुआ था, ग्लैंड फुल गया, दे विल इंटरप्रेट एट देयर ओन वे। तो हमको बस पूछना है कोई ग्लैंड फुला है कि नहीं, ऐसे कब से फुला है, कितना दिन से है, इसके सब कोई डिस्चार्ज है कि नहीं, कफ है कि नहीं, वेट गेन, फीवर, स्वेट, नाइट, एडोलेसेंट बच्चा है तो नाइट स्वेट, छोटा बच्चा है तो वेट गेनिंग और नॉट गेनिंग वेट, फोर स्क्रीनिंग करना है। तो ये सब हम लोग को क्लिनिकल मॉनिटरिंग में ही करना है। Then, of course, we have to ask the history for clinical adherence, treatment adherence. Not only the ART, what are the other drugs baby is taking, like baby maybe Ciptrax, cotrimoxazole खा रहे हैं, pyridoxine, ionase prophylactis और ATD खा रहे हैं, और vitamins खा रहे हैं, वही कुछ और दवा खा रहे हैं, तो सबको, क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या है, जब कोई भी प्रॉब्लम होता है, बच्चों का कोई बीमारी होती है, वो बाहर के डॉक्टर्स को दिखाते हैं, तब वो लोग बताते नहीं है कि वो लोग HIV पॉजिटिव है। जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए वो लोग बाहर जाते हैं, तो बाहर के जो डॉक्टर देखते हैं उनको पता नहीं होता है कि इसको HIV है, तो वो ये सोचते भी नहीं है कि ड्रग का इंटरेक्शन के बारे में। तो लेकिन वो लोग जब ART सेंटर में आते हैं, आपके पास जब आते हैं, वो लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि आपके साथ कंटिन्यूस मुलाकात होती है, एवरी मंथ दे आर कमिंग एंड ऑल, एंड स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, एंड पेरेंट्स आर टेकिंग मेडिकेशन, सो वो लोग का एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है ART सेंटर में। तो दे आपको बताएंगे कि हम बाहर गए थे, ये डॉक्टर को दिखाई थी, ये प्रिस्क्रिप्शन है, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी द एनी ड्रग इंट्रैक्शन और एनी ड्रग्स गिवन व्हिच इज may hamper the absorption and metabolism of the ART. एंड ऑफ कोर्स द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी देखना है, कोई जब भी कोई ड्रग देते हैं उसका साइड इफेक्ट्स में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, किसी को होगा किसी को नहीं भी हो सकता है, तो हमको वॉलंटियरली ये क्वेश्चंस पूछना है एंड वो एडवर्स ड्रग देखना है। देन इफ हम लोग को लगे कि कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहा है, या रूटीनली जैसे हम लोग जाइडोबिडिन दे रहे हैं, कंप्लेन करे कि ना करे, क्लिनिकली पेल हो, पैलेट दिखे या ना दिखे, फिर भी हम लोग 15 डेज के बाद हीमोग्लोबिन कराते हैं। तो कुछ कुछ टॉक्सिसिटी हम लोग मॉनिटर करते हैं बाई लैब, क्लिनिकल मॉनिटरिंग करते हैं, कुछ कुछ हम लोग का लेबोरेटरी मॉनिटरिंग भी करते हैं। देन इफ वी हैव गिवन दी ART फॉर 6 months, तो हम लोग CD4 एंड वायरोलॉजिकल टेस्टिंग भी करेंगे। सो क्या क्या मॉनिटर करते हैं, जैसा आई ऑलरेडी सेड, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, डेवलपमेंटल प्रोग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो नॉर्मली यंग बच्चे जो होते हैं, किड्स और टॉडलर्स जो होते हैं 1 to 3 years, दे रैपिडली ग्रो करते हैं, उसका डिफरेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होता है। तो इफ ए पेशेंट इज ऑन ड्रग, टेकिंग मेडिकेशन, एंड देयर इज अ डेवलपमेंटल रिग्रेस, वो रिग्रेस कर रहा है, तो हम लोग को सोचना है ड्रग, आइदर ड्रग इज ही इज नॉट टेकिंग ड्रग, or some other problems or why is there. So always be alert if there's a developmental halt or developmental regression. When developmental halt means एक अचीव किया उसके बाद अचीव नहीं कर रहा है, या जो भी अचीव किया वो लूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। तो हमको दोनों चीज में अलर्ट होना है, ये काउंसलर्स को देखना है कि रिग्रेशन बैक हो रहा है तो हम क्या क्या सोचेंगे, डॉक्टर से डिस्कस करना है, उस तरह के उसको काउंसलिंग करना है। Then clinical monitoring of opportunistic infection very important, क्योंकि opportunistic infection means not only जो जो common opportunistic infection है immunocompromised का वो देखेंगे, हमारे बच्चे का इवन रेस्पिरेटरी निमोनिया, अपर रेस्पिरेटरी पेशेंट, निमोनिया ड्यू टू RSV वायरस, वो काफी सीरियस हो सकता है, लाइक वी हैव सीन एडिनो वायरस, कोरोना वायरस काफी सीरियस होता है। सो वायरल इन्फेक्शन होने से भी हम लोगों को केयरफुल रहना है कि उसको टेकिपनिया है कि नहीं, डिस्ट्रेस है कि नहीं, फीवर है, सांस की तकलीफ हो रही कि नहीं। तो वाई के बारे में हम लोग कॉमन वॉइस की भी देखना है, डायरिया, लूज मोशन, वॉर्म इन्फेस्टेशन, स्किन इन्फेस्टेशन, ये सब हमको देखना है। उसके अलावा भी जो जो opportunistic infection है, जैसे जीरो बेसिक निमोनिया, देन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डायरिया, बैक्टीरियल डायरिया, ऑल दोस थिंग्स है कि नहीं। ट्रीटमेंट एडेरेंस, लेकिन हम लोग क्लिनिकली ट्रीटमेंट एडेरेंस का अलग से डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट एयर डोज एज पर वेट, एज ऑलरेडी सेड कि डायनेमिक प्रोसेस, ईच एंड एवरी विजिट हम लोग वेट लेंगे एंड फिर चेक करेंगे वट एवर द डोज इज गिवन इट इज अप्रोप्रिएट फॉर नॉट, क्योंकि एक बार मिस्टेक होगा, चेक करेंगे तो वो करेक्ट कर सकते हैं, यदि चेक ना करें तो वो गलती चलती रहेगी। At every visit, check body weight of the infant child. Drug dose need to be modified according to the change in body weight. So monitoring children adherence कैसे, use of reminders कैसे increase करेंगे adherence, तो reminder दे सकते हैं, reminder में भी ड्यू टू ऐसे pill counts करना है,
Report by caregivers, বাইরে কথা বলো। Report by caregivers, refill boxes, चेकिंग पिल चार्ट्स, कैलेंडर्स, डायरीज। तो वो किस तरह से रिमाइंडर दिया, आइदर केयर गिवर्स किस तरह से रिमाइंडर रखती हैं घर में, या घर में रखते हैं, वो हम लोग देखेंगे। फिर ऑफकोर्स पील काउंट, बट पील काउंट इज वेरी वेग। दे कैन डू वट, दे विल टेक द मेडिसिन एंड कैन थ्रो इट आउट एंड यू कैन गेट द पील काउंट नॉर्मल। सो पील काउंट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू नहीं है फॉर द अधेरेंस इशूज, बिकॉज पील काउंट को नॉर्मल रखने का बहुत तरह से गलत तरीका है। पील लिया, खाया नहीं, बैग में रख दिया, फेंक दिया, कुछ भी कर सकते हैं। सो पील काउंट इज नॉट दैट सेंसिटिव, बट रिपोर्ट्स बाय द केयर गिवर्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन पील कैसे रिमाइंडर करते हैं कि कब कब छोटा है, यू हैव टू एम्फेसाइज ऑन दैट। Also check the regularity of the child's visit to the center and adherence to the other co-medications. हमने बताया कि वेट के अनुसार डोज को चेंज करना, इट्स अ डायनामिक। एंड इफ दैट किड इज नॉट कमिंग रेगुलरली, तो आप वेट कैसे लेंगे? कभी कभी होता है उसका एग्जाम है, क्लास है, करिकुलर एक्टिविटीज है, कभी ऐसा भी होता है कि छुट्टी हो गया है, गर्मी में मम्मी के मामा वो नानी के यहाँ चला गया, कहीं और घूमने चला गया, तो ही इज़ नॉट कमिंग रेगुलरली, ही और शी इज़ नॉट कमिंग रेगुलरली। उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, केयर गिवर्स आ रहे हैं मेडिसिन लेने, तो हम लोग देख नहीं पाएंगे ना वेट वेट बढ़ रहा है कि घट रहा है। सो इट्स बेटर ऑलवेज आस्क देम टू कम इन एनी टाइम एंड गेट इट चेक्ड, नहीं तो हम लोग का वो मिस हो सकता है। एडहेरेंस टू द अदर को मेडिकेशंस भी देखना है, वो सब खा रहा है कि नहीं, स्पेशली टीबी का दवा एंड अदर विटामिन एंड कैल्शियम्स एंड ऑल वट एवर रेगुलरली टेक। So let's discuss one case. A 8-year-old girl and on abaquilamividine and dolutegravir with weight 24 kg. So 8 year 24 kg is okay, good weight, has come for pill pickup. Father asked the doctor why her CD4 has fallen. The viral load reported 10,000. So CD4 decrease कर रहा है, viral load बढ़ रहा है। तो इसलिए पापा पूछे क्यों ना, उसका बच्चे दवा तो खा ही रहा है, ठीक ठीक खा रहा है, फिर भी क्यों कम घट रहा है। एज पर फादर देन ऑन इंक्वायरी ये पता चला कि ग्रैंड मदर वो पिल्स दे रही हैं रेगुलरली, पापा नहीं खुद नहीं खिला रहे। On inquiry, the child revealed that she was taking 2.5 tablets of AL pediatric twice daily and one tablet DTG 50 once daily. तो ये बच्चे को भी पूछना है, नानी से जो पूछना है, बच्चे को पूछना है, केयर गिवर जो आप जिसको काउंसलिंग किए थे उनको भी पूछना है कि कितना दवा दे रहे हैं। तो इसी सेट की 2.5 tablets AL and weighs 24 kg, you check it whether it is low or appropriate. The correct dose of AL 24 kg is 3 tablets. You see, so it was given less. Previously, when it was less than 20, it was 2.5 tablets. And when it's increased, it became 3 tablets. You, as a counselor, you counsel the father कि 3 टैबलेट देना है। एंड फादर जाके अपने मामा को, ग्रैंड मदर को बोला दवा पिलाने के लिए, बट ही हैज नॉट कन्वेड दैट वर्ड दैट कि वो टेबलेट 2.5 से 3 हो गया है। तो दिस मैसेज इज नॉट गिवन टू द ग्रैंड मदर। तो वो पहले जो 2.5 टेबलेट खिला रही थी वही टेबलेट चल रहा है। सो इट्स अंडर डोजिंग। तो अंडर डोजिंग होने से तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। दैट्स व्हाई CD4 is decreasing and the viral load is increasing. So what is should be taken to avoid this situation? You just go on writing on the chat box. That will be easy for you also and for me also to give the answer. Respond for the session. At every visit, check the body weight of the child. Drug dose have to be modified according to the change in the body weight. Caregivers should be counseled whenever the dose is increased due to weight gain. Every visit, counselor should speak to the child also and to confirm the dose of medicine. Medical officer should reinforce the dose changes to caregiver, and pharmacist should also reinforce the dose. So many times if hammers and hammers and hammers, so it will be recorded in the brain. तो हम लोग उसने बार बार कर वो काउंसलर बोलेंगे, डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर बोलेंगे, फार्मासिस्ट बोलेंगे। एंड here I want to add one thing also. Here the secondary caregiver, the grandmother is giving the tablet. So you ask the father to bring the grandmother once if possible. If she is so old to or too old to come, then ask the grandfather to counsel in such a way that it will be effective one. Because when it is translated to the second person, the quality will be decreased. It is always better to counsel in the directly.
सो एज फादर, इफ द फादर गिव्स द मेडिसिन, तो फादर को ही डायरेक्ट काउंसलिंग करना है, लेकिन ग्रैंड मदर यदि दे रही है तो डायरेक्ट ग्रैंड मदर काउंसलिंग करना बेटर है. आइदर यू कैन डू जूम मीटिंग एंड ऑल, एंड यू कैन काउंसलिंग दैट वे इफ ग्रैंड मदर इज टू वीक टू कम. So pediatric ARV options are limited, hence ongoing adherence monitoring is very essential. Poor adherence plays significant role in emergence of drug resistance. तो अंडर डोजिंग होगा, poor compliance होगा, मिस डोज होगा, तो chances of resistance बढ़ जाएगा and there will be a failure. Ensure checking for treatment adherence, clinical monitoring, and T staging every visit in essential. Barriers to adherence should be assessed and addressed regularly. Then laboratory monitoring according to the regime you are giving. So we have a protocol, and according to protocol and regime, we will go on doing the investigation at a frequent interval, which is given in a chart. So हम लोग ब्लड यूरिया डिपेंडिंग हम क्या मिल रहा है, टेरोफेबर मिल रहा है तो हम लोग रियल फंक्शंस करेंगे. एडोलेसेंट गर्ल्स कम्स द फर्स्ट टाइम, दे विल गो द हिस्ट्री ऑफ एनी सेक्सुअल एक्सपोजर, वी कैन गो फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट एंड ऑल. तो हम लोग अकॉर्डिंगली टेस्ट करेंगे. सो मॉनिटरिंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग रूटीन विजिट किया गया, देखें इन्फेंट एंड चाइल्ड ऑन ART रूटीन फॉलोअप करना है. रिव्यू द इंटरिम मेडिकल हिस्ट्री फॉर एविडेंस ऑफ एनी न्यू क्लिनिकल इवेंट्स. तो आपने डायग्नोस किया, स्टार्ट किया ART, आपने बुलाया फॉर फॉलोअप. तो फॉलोअप के बाद आपको ये पता करना है कि जो जो कंप्लेन लेके फर्स्ट टाइम आया था वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, और वो इम्प्रूव हो रहा है, उसके अलावा कुछ नया सिम्टम्स अपेयर किया कि नहीं. नहीं तो इफ यू वोंट आस्क, दे थिंक ओ वो तो अलग बात है, वो किसी और को डॉक्टर को दिखा लेंगे, यहाँ तो ART लेने आए हैं, ART लेके चले जाएंगे. सो ये डॉक्टर्स ड्यूटी, काउंसलर्स ड्यूटी टू टेक ऑल द थिंग्स इन टुगेदर. Assess the growth and nutrition, perform thorough physical examination, otherwise you miss something. Assess developmental progress. Just पूछना है कि weight, height, then development milestones, sitting, standing, walking, running up stairs, up and down, then hopping, jumping, skipping, different milestones, gross motor, फाइन मोटर में वो हाथ पकड़ पाते एक्चुअली वो आपको याद नहीं करना है. वो जो व्हाइट कार्ड है इसमें डेवलपमेंटल असेसमेंट का चार्ट है, यू कैन सी दैट एंड एज अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस करें. इवन आपके पास जो इम्यूनाइजेशन टिकट का कार्ड है, एमसीपी कार्ड, उसमें भी डेवलपमेंटल लिखा हुआ है कि कौन साल के बच्चे को क्या क्या करना चाहिए, वो करने के लिए उसको क्या क्या स्टिमुलेट करना है, वो भी दिया हुआ है. Identify the concomitant conditions, especially for screening, and of course staging करना है. Then if required, we do the different lab treatment. First 6 months after starting ART is very critical. May suffer from new events. That is because it will take time to suppress the viral replications and immune reconstitutions and all. तो ऑपरेशन से इन्फेक्शन होने का काफ़ी चांस रहता है. एंड ऑफ कोर्स द इम्यून इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी हो सकता है. वो जो सिम्टम्स था वो अनमास्किंग हो गया और रिलैप्सिंग हो गया, लाइक लिम्फ नोड जो छोटा था बढ़ गया. इफ देयर इज नो कन्वर्शन माइट डेवलप कन्वर्शन स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोमा फ्लेड अप. तो ये हम लोगों को न्यू सिम्टम्स अपेयर के ना वो भी देखना है. ART related adverse effects, we have to have a knowledge about the adverse effect of which drug. वो याद भी नहीं हो तो हम ड्रग लिस्ट देख लेंगे, उसके अनुसार हम लोग पूछेंगे. न्यू बिहेवियर लाइफ स्टाइल एंड पैटर्न्स बीइंग सेट, बिकॉज चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन लाइफ स्टाइल कैन चेंज इन दी ड्रग एडहेरेंस ऑल्सो. तो हमको वो भी पता करना है. रैपिड गेन इन वेट, समटाइम्स हमने ये भी देखा है कि पहले घर में था, बाद में वो हॉस्टल में चला गया. तो ये चेंज इन स्टेइंग होम से हॉस्टल में, वहाँ कैसे दवा खाएगा, कैसे वो कौन मॉनिटर करेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. सो ऑलवेज टेक द होम इन्वायरमेंट ऑल्सो. रैपिड गेन इन वेट, स्पेशली द चाइल्ड वॉज malnourished. चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, डॉक्टर शॉपिंग, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट. तो आप वो उसको काउंसलिंग, यदि लैक ऑफ काउंसलिंग, वो काउंसलिंग होगा तो उसका अंडरस्टैंडिंग भी ठीक नहीं होगा. काउंसलिंग इज टू इम्पॉर्टेंट टू मेक द अंडरस्टैंड अबाउट द डिजीज, अबाउट द ड्रग, अबाउट द ट्रीटमेंट, अबाउट द आउटकम, एवरीथिंग. एंड डॉक्टर शॉपिंग, if you won't counsel properly, you won't take care of all the things. ओके अरे ये डॉक्टर तो टाइम ही नहीं देता है, यहाँ तो अच्छे से बताते भी नहीं, मैं किसी कहीं और दिखा लूंगी करके वो किसी और डॉक्टर के पास चला जाएगा. So go on changing the doctors, that is doctor shopping, and then that ultimately the result will be poor. और समटाइम्स क्या करेगा ये आपको बताना है कि ये ऐसा कोई मिरेकल नहीं है कि आज अब दवा खाए कल से वो एकदम ठीक हो गया. दे विल एक्सपेक्ट लाइक दिस, नो. कि फीवर है, पैरासिटामोल खाए, ज्वर बुखार चला गया. तो हम लोग को ये बताना है कि इट विल टेक टाइम.
नहीं तो वो क्या करे, अरे इससे तो काम नहीं हो रहा है, एलोपैथी से चलो थोड़ा सा आयुर्वेदिक ले लेते हैं, थोड़ा होम्योपैथी कर लेते हैं, तो ऑल्टरनेटिव मैनेजमेंट में चले जा सकते हैं। तो हमारा काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले है। तो disclosure is a complex process. Now, counseling में one of the important aspects of disclosure. Timely disclosure is very important. Improve that can improve the adherence to the medicine. Even हमने ये भी देखा है कि 14 years, 15 years हो गया, adolescent child he takes the medicine regularly, comes to the center regularly, but he doesn't know what had happened to him. So मैंने पूछा कि आपको पता है क्या हुआ है? नहीं पता है. So that's very ये bad thing. You should make them aware of the disease, the drugs, and the course of the illness and everything, so that the compliance will be better. Reduce the physiological distress, increase likelihood appropriate disclosure to the others, better engagement in HIV related care. तो वो उसको पता होगा कि HIV क्या है, HIV से उसको किस तरह से डिजीज स्प्रेड होता है, HIV बॉडी के अंदर जाके कैसे कैसे डिफेक्ट करता है, क्या क्या प्रॉब्लम करता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है. सो ही विल नो एंड ही विल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द HIV इन्फेक्शंस. देन उससे क्या हो ना, वो उसको पता होगा कि हमको दवा खाना है, नहीं तो ये सब प्रॉब्लम होगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बिहेवियर रिलेटेड, HIV रिलेटेड बिहेवियर, उसको उसको भी पता चलेगा कि हम ये करेंगे तो हमको HIV नहीं. हगिंग किसिंग इज नॉट द वे ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शंस ना. तो ये हमको उसको बताना है. तो डिस्क्लोज नहीं करने से आप ये उसको बता भी नहीं पाएंगे. तो डिस्क्लोजर इज फेज वाइज मैनर डिस्क्लोज करना है एंड उसको empower करना है about the HIV disease and treatment. The timing of disclosure to the child cannot be universal date or age. ऐसा नहीं है हम एकदम क्लास 6 साल में ही डिस्क्लोज करना है, 9 years में ही डिस्क्लोज नहीं. आपको देखना है उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, मैच्योरिटी लेवल क्या है, उसका कोप स्ट्रेस कोपिंग अप स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है. कोई कोई बच्चे बड़े भी हो जाते हैं एडोलेसेंट, बट दे कैन नॉट कोप अप दिस स्ट्रेस और दिस टाइप ऑफ ट्रॉमा एंड ऑल. समटाइम्स हमने देखा है कि ये वो लोग सुइसाइडल टेंडेंसी आ जाता है. तो ये हम लोग को देखना है कि इसका मैच्योरिटी लेवल क्या है, डेवलपमेंटल मैच्योरिटी क्या है, कोपिंग द स्ट्रेस कैसा है, देन ग्रेजुअली डिस्क्लोज करना है. Caregivers and all children is 5 years or more should be started prepared for the disclosure. तो हमको प्रिपेयर करना है एंड नॉट एट द पर्टिकुलर लेवल, इसी साल से हमको बोलना है, इसके बाद नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है. तो हम लोगों को ग्रेजुअली पर्शियल डिस्क्लोज करना है. पहले बताना है बीमार है, इस तरह का एक वायरल डिजीज है, लॉट्स ऑफ वायरल डिजीज, ये एक लॉन्ग लास्टिंग वायरल डिजीज है जो कि हमारे मेडिसिन से सप्रेस हो सकता है. Then, of course, after maturity and few months and years time, we can say it is an HIV and this is the mode of transmission. This is the complete. So, partial disclosure and then full disclosure must be done in a time, because I have seen 14 years, 15 years, and the baby child was not disclosed about the HIV. And we have got operation of office memorandum about the starting DTG 10, and which is available in our program. So now it has been changed, and all the regime should be changed, the DTG based regime. तो हम लोग कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले से ऑलरेडी ART ले रहे हैं, तो उनको कैसे DTG में ट्रांसफर करना, ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये हम लोग देखें बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें. तो आप लोगों को एकदम क्लियर होना है DTG 10 हम लोग किस तरह से कैसे ट्रांसफर करें. एक चीज सुन लीजिए, इफ ART नेव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पहले से एकदम स्टार्टिंग ALD के स्टार्ट करना है. और डॉलोटेक 10 मिलीग्राम टैबलेट का बॉडी वेट से लेना. 10 मिलीग्राम मीन्स उसको 10 मिलीग्राम ही दे रहे हैं, वो नहीं है. 10 मिलीग्राम टैबलेट को जितना मिला, एक टैबलेट, दो टैबलेट, 1.52, 2.53, वट एवर द डोजिंग, दैट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बॉडी वेट. बट टैबलेट जो है उसका पावर 10 मिलीग्राम है. एंड यदि नेट पेशेंट नहीं है, ART एक्सप्रेस चाइल्ड है, तो हमको देखना है वो 6 महीने का दवा खाया कि नहीं. एनी कंडीशन इफ दे मोर देन 6 months, आपको रूल आउट करना ही है वायरल फेलियर. सो वेन एवर यू सब्सटीट्यूट, और स्विच करने से तो हम लोग वायरल लोड करते ही हैं. इफ यू वांट टू सब्सटीट्यूट ऑल्सो मतलब सिंगल ड्रग, तो आप तभी भी आपको वायरल लोड करना है, क्योंकि इफ वायरल लोड में सेपरेशन हो तो ठीक है, आपने सिंगल ड्रग सब्सटीट्यूट कर दिया. बट इफ इज मोर देन 1000 वायरल सेपरेशन, बाई चांस आपको मिल गया हुआ वायरल सेपरेशन नहीं है, तो EAC करना है. इनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग जैसे हम लोग करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग, एंड एवरी मंथ ट्राई टू इंक्रीज द एडहेरेंस मोर देन 95%. फिर 3 months के बाद करेंगे. वायरल लोड अभी घट गया तो
सब्स्टिट्यूट करना है, यदि नहीं घटा है तो स्विच करना है, सेकंड लाइन में चला जाना है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट लेस मोर देन 6 months एंड लेस देन 6 months है बिकॉज वी हैव नॉट गिवन द एनफ टाइम टू सप्रेस द वायरल लोड, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली. Just write down the regime you can want to give. तो एल एल पी था, वायरल लोड 200 मीन सप्रेस्ड है, तो आप स्विच कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. इधर भी 800 कॉपीज, सेकंड जनरल एल पी बी है, वायरल लोड 800 कॉपीज. सो ओके, वेरी इट इज ऑल्सो वायरली सप्रेस्ड बाय डेफिनेशन. एंड एल एल पी है, वायरल लोड 1200 था कॉपीज, तो आप क्या करेंगे, ई ए सी करेंगे. ई ए सी करने के बाद देखा रिपीट वायरल लोड लेस देन 1000. गुड. नेक्स्ट इज जनरल एल पी बी है, वायरल लोड 1800, तो ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 600 से 6 months 1000 के से ज़्यादा है, तो हम लोग ई ए सी करेंगे, इनहांस एथेंस काउंसलिंग. एंड उसके बाद रिपीट वायरल लोड 3 months के बाद क्या है ना, ई ए सी टी एन दिया गया, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, ओनली टी जे डी कर देंगे. एल एल पी 1200, बट आफ्टर रिपीट वायरल लोड इट इज 2600, तो उसको स्विच करेंगे. अगेन 18,000 कॉपीज, रिपीट इज 10,000, तो इसको भी स्विच कर. तो हम लोग देख लेते हैं ए एल डी, हम लोग ने सब्सटीट्यूट के डॉल्टिकट बेस्ड ट्रीटमेंट दे दिए. एंड इफ देयर इज ए रिपीट वायरल लोड मोर देन 1000, देन वी विल स्विच ओवर. बट स्विचिंग ओवर मीन्स हम सेकंड लाइन में जा रहे हैं, तो इफ पेशेंट इज एल एल पी बी, देन हम लोग को देना है जेड एल डी. तो जेड एल डी देने के लिए हम लोग का क्राइटेरिया क्या है ना, हेमोग्लोबिन मोर देन 90%. हमको देख लेना कि उसका हेमोग्लोबिन कितना है. इफ लेस देन 9 gram%, तब तो प्रॉब्लम है. उसके टाइम हम लोग क्या करेंगे, विल कंटिन्यू द एल एंड विल स्टार्ट डीटीजी, बट विल ट्राई टू रूल आउट द कॉज ऑफ एनीमिया एंड ट्रीट द एनीमिया. व्हेन इट विल बी मोर देन 9 gram एंड ऑल, देन वी कैन स्विच ओवर, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो ऑलवेज लुक फॉर द कॉज ऑफ एनीमिया इन केस ऑफ patient is in AL, LPBR. What is the cause with the nutritional cause, any loss, worm infestations, and disease is there. So for children, definition of stable child, especially where we give the definition more than 2 years, not below 2 years. So 2 to 10 years का हम लोग कब बोलेंगे stable child, receiving EAT for at least 6 months, तो time देना ही है उसको. Viral load is suppressed less than 1000 copies and should be on the same regime for at least 3 months. ऐसा नहीं कि हम लोगों ने change किया है, मैं 6 months time over same regime का नहीं दिया, तो at least 3 months तो होना है. Should not have any active illness, medical condition that require further management. If opportunistic हो गया, infection हो गया, pneumonia हो गया, diarrhea हो गया, TB हो गया, so there will be change in all those. So that is not a stable child. Treatment adherence more than 95%, means वो ठीक ठीक दवा खा रहा है for the last 3 months and the adherence is more than 95%. Weight for age is more than 2 standard deviation or weight for height length is more than 2 standard deviation. Means उसका underweight भी नहीं है और stunting भी नहीं है. So nutritionally वो good है. More than minus 2 SD means less than minus 1 SD to minus 2 SD. So वो हम लोग normal में रखते हैं. तो वो ठीक है, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं ये stable child. Now, if more than 10 years old, so as an adult, on reactive for 6 months, no adverse effect reactive, no current illness or opportunistic infection, suppress viral load. In absence of viral load monitoring, of course, rising CD4 trend क्या है हम लोग को देखना, CD4 rising trend में है, more than 200 है, and other is more than 90 equal to or more than 95% होना ही है at least for the last consecutive 3 months. नहीं तो हम लोग उसको stable child नहीं बोल सकते हैं. In pediatrics, we have to take care of the newborns, we have to take care of the kids and toddlers and schoolgoers, and also we have to take care of the adolescents. And adolescents are as good as adult, but there is lots of changes, differences from the adult because of the mental, psychological, hormonal and physical issues. तो एडोलेसेंट फ्रेंडली एटी सर्विस देना है, उन लोगों को अलग से इम्पोर्टेंस देना है, अलग से टाइमिंग देना है. एडोलेसेंट इज 10 to 19 years experience, रैपिड फिजिकल चेंजेस होता है, बोथ एक्सटर्नली इंटरनली, कॉग्निटिव चेंजेस एंड साइकोसोशल ग्रोथ भी होता है. दिस अफेक्ट्स हाउ दे फील, थिंक, मेक डिसीजन एंड इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड. सो एडोलेसेंट विद एचआईवी फेस कंसिडरेबल चैलेंजेस, हैव यूनिक नीड्स एंड वल्नरेबिलिटी. कि एडोलेसेंट जो होते हैं ना हमारे, ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा, एडोलेसेंट दे डोंट कम टू द ओपीडीज बिकॉज दे रियरली सिक, fall sick, रियरली fall sick. तो इसलिए वो लोग आना नहीं चाहते, क्योंकि वो हम तो एकदम ठीक है, तंदुरुस्त है, सब काम कर सकते हैं, हम तो बीमार नहीं है, हम क्यों दवा लेंगे. एंड दे आर मोर ऑन
peer dependent, peer pressure रहता है. Other they are always busy with the works, classes, studies और work और extra curricular activities and all. तो उन लोगों का स्टाइल, लाइफ स्टाइल भी चेंज होता है, टाइमिंग भी चेंज होता है कि दे आर गोइंग टू स्कूल फॉर डेली 9 to 4, तो व्हेन दे विल कम टू द एटी सेंटर. फिर उन लोगों का ये भी रहता है कि हम एटी सेंटर जाएंगे, सबको पता है एटी में HIV का दवा मिलता है. तो कोई मेरा कोई रिलेटिव देख लिया, कोई दोस्त देख लिया, कोई आस आस पड़ोस वाले देख लिए, तो हंगामा हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा हम HIV हैं. तो कहाँ से हम लोग को HIV आया. इफ द वर्टिकल एक्वायर्ड, वर्टिकली एक्वायर्ड है तो ठीक है, वो लोग एक्लेटमाइज हो जाते हैं, ग्रेजुएट छोट बचपन से आते आते उन लोगों को आ जाता है. बट इफ द infected at the adolescent phase like blood transfusion, sexual exposures and all, तो वो का psychological counseling in different way पे होता है, and there's a huge psychological setback. तो उसको हम लोग को address करना है, इशू को, and उन लोगों को मैनेज करना है. That's why we need adolescent friendly health link. So age appropriate sexuality education, linkage with the schemes to develop life skills, access to the health services including the sexual and reproductive health services. तो ये सब हम लोग को ये करना है, इंटर रिलेटेड करना है. जितना हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता है, किशोर स्वास्थ्य RKS के चलता है, बहुत सारे कार्यक्रम चलता है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट का. तो उसमें हम लोग को उन लोग का भी लिंक करना है. एंड इफ देयर सम NGOs वर्किंग ऑन एडोलेसेंट हेल्थ एंड ऑल, उन लोग को भी लिंक करना है. तो leverage the resource from existing networks, as I already said, NSS है, रेड ड्रिवन क्लब्स है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, सेल्फ ग्रुप, NGOs उन लोगों के साथ कोऑपरेट करना है. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, दे डोंट वांट टू बी लिंक विद अदर्स, बिकॉज वो सोच रहा है कि उसका तो एक्सपोजर हो जा रहा है, उसका पता चल रहा है सबको को HIV है. यू मे नॉट से दैट द बेबी इज HIV पॉजिटिव, बट यू कैन गिव दिस द सपोर्ट्स एंड ऑल विदाउट टेलिंग द डिस्क्लोजिंग द थिंग्स. तो हमारा लिंकेज विथ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम लाइक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, किशोर शक्ति योजना है, राष्ट्रीय युवा शक्तिकरण का एक प्रोग्राम है, वो हम लोग उसके साथ लिंक कर सकते हैं एडोलेसेंट हेल्थ केयर ऑल्सो. सो virological failure, and there's a question, virological failure in children defined as 2 consecutive HIV and plasma viral load more than 1,000 copies, which the following criteria is the definition viral load. After 6 months of ART initiation, after giving 3 sessions of step up adherence counseling, adherence in each of the last 3 months was more than 90%. तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए which is one of the following criteria will be included while taking the definition of virological failure or all of the above. So identify treatment failure. ये रहा definition. डेफिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर में भी क्लिनिकल फेलियर हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल फेलियर हो सकता है, क्या वायरोलॉजिकल फेलियर हो सकता है. तो इसको हम लोग वायरोलॉजिकल फेलियर बोलेंगे. वायरल लोड मोर देन 1,000 कॉपीज एंड in 6 months में after taking at least after taking ART for 6 months and after 3 sessions of ESC with adherence more than 95%. Immunological failure a different age group का different है. Children below 35 months, between 35 to 59 months, and children age 5 years and above. Then actually clinical failure, clinical failure is very important. तो हम लोग को क्लिनिकल फेलियर में बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि पेडियाट्रिक एज ग्रुप में समटाइम्स दे मे नॉट से, दे डोंट थिंक इट्स क्लिनिकल फेलियर, दे थिंक इट इज अ कंकरेंट इलनेस. वो तो होते रहता है, सपोज देयर इज अ निमोनिया एंड दे विल थिंक वो उसका तो दमा कसी कहते हैं, वो तो होते रहता है, ये इस बीमारी के साथ कोई रिलेशन नहीं है. दे ओंट डिस्क्लोज, बट यू हैव टू आस्क ऑल दोस थिंग्स टू नो एनी क्लिनिकल फीचर्स आर देयर और नॉट. एंड फॉर स्क्रीनिंग, developmental assessment is very important. Progressive neurodevelopmental deterioration means regression or not gaining development milestone. दोनों growth failure means not gaining weight or lost weight. Both are the features. So वो हम लोग का देखना है clinical failure में, and that is the definition of treatment failure. This the graph is very important. Just a few lines you see, the red line, blue line, and the black line. Red line जो है ना viral CD4 and blue, and the black one the clinical status. And the this x-axis is a time period. तो इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंस है, आप देखिए भाई, सबसे पहले क्या होता है ना बच्चों में, वायरल लोड फेल करता है. सबसे पहले ट्रीटमेंट फेलियर होगा, फर्स्ट देयर वे वायरल लोड फेलियर. गो ऑन दिस वायरल लोड. There is no pointer. Okay.
pointer, yes. Oh, sorry. नो ओके सो पॉइंट आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंटर ओके तो वो वायरल लोड आप देखो वायरल लोड काफ़ी दिन से फेलियर है बहुत दिन हम लोग इंटरफेयर नहीं किए तभी ये CD4 फेल करने लगा इट विल टेक टाइम इट विल टेक टाइम तो CD4 तो इसलिए हम लोग 6 मंथ्स के बाद हम लोग वायरल लोड करते हैं क्योंकि क्लिनिकली हम लोग देखेंगे दैट मीन्स बहुत देर हो चुका है इसलिए पहले हम लोग यदि वायरल लोड रूटीनली करें वी आर वेरी वॉचफुल अबाउट द वायरल काउंट्स एंड ऑल तो हम लोग बहुत अर्ली इसको पिकअप कर सकते हैं फेलियर ट्रीटमेंट फेलियर तो वायरल लोड फेलियर बहुत दिन तक हम लोग नेग्लेक्ट करते रहे नहीं करे देन ओनली आफ्टर मेनी मंथ्स टाइम यू सी स्टार्ट डिक्रीज CD4 स्टार्ट डिक्रीजिंग जो ब्लू लाइन है उसके बाद CD4 भी काफी गिरते गिरते काफी देर फिर हम लोग का ब्लैक लाइन देखिए ड्रॉप कर रहा है काफी दिन बाद मीन CD4 भी डिक्रीज करे उसके काफी दिन बाद क्लिनिकली हम लोग को एविडेंट होता है तो जब हम लोग के पास पेशेंट आते हैं क्लिनिकल फेलियर लेके दैट मीन इज ऑलरेडी टू लेट ऑलरेडी देयर इज अ वायरल फेलियर एंड CD4 तो ये ग्राफ का दिखाने ये emphasize करता है कि वी शुड बी वेरी वॉचफुल अबाउट द वायरल लोड because when this the patient comes with a clinical failure that means already they are in viral residual failure and CD4 failure तो स्टेप ऑफ एडहेरेंस काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या करना है मिनिमम ऑफ 3 सेशंस आर रिकमेंडेड फॉर स्टेप ऑफ एडहेरेंस काउंसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट all counseling sessions are to be taken preferably by the same counselor both caregivers and the child should be counseled together and individually in all the sessions एंड जब हम पूछते हैं केयर गिवर को पूछेंगे कितना दवा दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं कब खिला रहे हैं कितने एंड वो हम लोग कंफर्म बच्चे से भी करेंगे counselor needs to review all the barriers that lead to poor adherence and provide customized counseling a customized adherence plan should be developed with involvement of both the caregiver and the child तो दोनों को एक साथ बैठा के दोनों का व्यू लेके हम लोग को कस्टमाइज करना है कि हम कैसे एडहेरेंस प्लान बनाएं कि उसको इम्प्रूव कर सके केयर गिवर बोले नहीं आप हमको टाइम होगा सुबह हम सुबह पिलाएंगे बच्चे बोल कर नहीं हमको तो उतना सुबह उठना ही नहीं है हम देर से उठेंगे नींद से तो ये हमको प्रॉब्लम हो जाएगा केयर गिवर तो एग्रीड कि ही विल गिव एट 7 AM बट द किड सेड कि I'll get up at 8 AM तो वो नहीं होगा इसलिए हम लोग को दोनों को मिला के प्लान करना है दोनों को कॉन्फिडेंस में लेके दोनों का ओपिनियन लेके हम लोग को एडहेरेंस का प्लान करना है जो कि कस्टमाइज अकॉर्डिंग द इंडिविजुअल चाइल्ड एंड कैन इंक्रीज द एडहेरेंस ensure weight documentation in white card and green book on each visit and ये हम लोग को देखना है काफी दिया हम लोग को मिस हो जाता है हम लोग देखते हैं वेट एंड ग्रीन बुक में लिखते हैं लेकिन व्हाइट कार्ड में लिखना भूल जाते हैं वो भी हम लोग को देखना है कि हम लोग व्हाइट कार्ड में ठीक एंट्री किए हैं कि नहीं केयर सपोर्ट सेंटर से भी इन्वॉल्व होना चाहिए फॉर केयर चाइल्ड फॉर अधेरेंस ग्रुप काउंसलिंग शुड बी टेकन इफ काफी 4-5 बच्चे एक साथ आ गए यू कैन डू देयर व्हेन द ERT सेंटर आल्सो यू कैन डू द ग्रुप काउंसलिंग सब बच्चे दे विल टेक मोर नाइसली एंड मोर फ्रेंडली इफ देयर अदर किड्स आर देयर तो आप ग्रुप काउंसलिंग कर सकते हैं विद द पेरेंट्स विदाउट पेरेंट्स ओनली ग्रुप्स सो इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स में काउंसलिंग कर सकते हैं So, what is the importance of group counseling? You can allay the fear of side effects. एक बच्चा कुछ बताया, वो बच्चा कुछ बताया, अपना experience share किया, or some tips you may take from the others. Someone having good adherence, he gives some tips to the others, so that can be taken. Assessment of mental health is very important because especially in adolescents and who are not getting the infection from the vertical transmission because vertical transmission में क्या होता है एकदम by birth से वो उधर आ रहा है every 6 weeks और monthly जब मदर आ रही है और बीच में आ रहा है ये पॉजिटिव हो गया तब every month baby is coming for taking medications तो वो लोग इन नोन इन्वायरमेंट में रहता है वो नोन इन्वायरमेंट में आ रहा है बट जो बच्चे लाइक ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन injection or the maybe sexual abuse or sometimes other way of giving the transfusion and all surgery and all getting infection but not vertical that's called horizontal transfusion उस बच्चे का मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है तो हम लोग को वो असेस करना ये कितना ठीक है कितना इसको काउंसलिंग लगे वो प्रोफेशनल काउंसलिंग समटाइम्स यू मे नीड ड्रग्स आल्सो एंड बट आई रिक्वेस्ट द काउंसलर्स डोंट गिव द ड्रग्स इफ पेशेंट नीड्स ड्रग्स किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए दवा देना इट शुड बी गिवन बाय द साइकेट्रिस्ट नॉट बाय द साइकोलॉजिस्ट strategies to improve the adherence education and counseling is very important health education तो हमको बताना है एजुकेट करना है कि केयर गिवर्स को बच्चे को क्यों HIV क्या है कैसे हमारा हेल्थ को बिगाड़ रहा है क्या क्या हमारा प्रॉब्लम कर रहा है बॉडी में
एंड ART से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे ये किस तरह HIV को सप्रेस करता है, एंड इम्पोर्टेंस क्या है एडहेरेंस का, एडहेरेंस नहीं करने के तो क्या हमारा हानि होने वाला है, या क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब हम लोग को थोड़ा थोड़ा उन लोगों को लैंग्वेज में वो समझाना है। मेडिकल टर्म्स यहाँ यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, लोकल उनका लोकल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। मेडिकल टर्म इज जार्गन्स, मेडिकल टर्म्स ये यूज़ करने से कन्फ्यूजन होगा, एंड देयर विल बैड रिलेशन विद द caregiver and the counselor. Counseling, regular counseling session to address barriers to adherence, such stigma, misconception of the HIV and ERT, वो सब हम लोग को रिमूव करना है। देन आपको सपोर्ट ग्रुप सिस्टम रहना है, पीयर सपोर्ट ग्रुप, कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप, सिंपली रेजिम वर्क सिंप्लीफाई करना है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, वंस डेली डिविजन इज बेटर in case of adherence and compliance will be good if the one once daily or fixed dose combination, तो वो हम लोग को समझाना है कि इसमें 4 दवाएं एक साथ मिलाया हुआ है, आप एक ही साथ खाओगे तो हो जाएगा। Reminders and incentives again. Reminders, usually reminders such as alarms, phone calls, text message, prompt medication taking. तो हमारा मेडिसिन लेने के लिए जितना भी वे है टू इम्प्रूव द अदर्स वी कैन टेक, एंड वी कैन समटाइम्स आस्क देम, गिव देम आइडिया। आप बताओ आप कैसे याद रखोगे, कैसे आपको सुविधा होगा याद रखने के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट इंसेंटिव्स, प्रोवाइड इंसेंटिव्स और रिवर्स फॉर कंसिस्टेंट अटेंड। तो महीने महीने काफी दिन से उसका अटेंडेंस बहुत अच्छा है। Incentives. What do you mean by incentive? Not money, not junk foods, and not chocolates and cakes and all. We give some reading materials, playing materials, give some puzzles and all sorts of things which are not harmful. Because if you give the money, that is also harmful for the kids and all. And then if you give the food like the junk foods like chocolates and cakes and patties and pastries, and these are harmful. So don't give incentives in that way. You can give incentives for the educational materials and all, coloring paint, coloring a book and all. Addressing psychological factors as already discussed. The importance of consideration before diagnosing treatment failure. तो ट्रीटमेंट फेलियर देखने के पहले हमको कुछ कुछ चीज याद रखना है कि वो 6 months का ART दिया है कि नहीं, एडरेंस 95% था कि लास्ट 3 months में, कोई अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है कि नहीं, या ये रिएक्शन टू द ड्रग्स है कि नहीं, साइड इफेक्ट्स है कि नहीं, इम्यून रिकंस्टिट्यूशन है कि नहीं। एंड ऑफ कोर्स समटाइम्स क्या है ना, डायरिया हो गया या निमोनिया आ गया या कहीं फीवर था, कुछ टाइफाइड है, कुछ और बीमारी हो जिसकी वजह से वो उसने खाया नहीं, और सीवियर मेल हो गया। बिकॉज मेल न्यूट्रिशन इज अ कम्पिटिटर ऑफ HIV। तो मेल न्यूट्रिशन भी HIV की तरह बिहेव करता है, मेल न्यूट्रिशन में भी इम्यूनो डिफिशियंसी होता है, मेल न्यूट्रिशन सब ऑर्गन को डैमेज करता है। तो उसका मेल न्यूट्रिशन हो गया क्या, दैट में मिमिक द क्लिनिकल फेलियर ऑफ HIV। तो HIV जो जो हार्मफुल इफेक्ट है बॉडी में, मेल न्यूट्रिशन का भी वो हार्मफुल है। सो सीवियर मेल न्यूट्रिशन एंड HIV इज कम्पिटेटिव टू ईच अदर। तो हम लोग को देखना है ये जो सिम्टम्स है जो हम सोच रहे हैं ट्रीटमेंट फेलियर, कहीं मेल न्यूट्रिशन की वजह से तो नहीं है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड रिव्यू द एवरी डोजेस एज पर वेट। Next case, Miss V was diagnosed with HIV in 2015 by vertical transmission. The age of 1 year, ART is initiated. ALLP भी दिया था 15 years. तो 8 to 8.2 kg and 1 year में 8.2 kg काफी ठीक ही है, more acceptable level. Now child was ALP for 2 years, means 15 to 17. Restarted ART after 2 years, 4 years के बाद उसका रीस्टार्ट किया सेम ड्रग, and weight only 9.5. You see, at 1 year is 8.52 kg, and at 4 years, um, 4 years में 19 में 2015 में 1 year था, 19 में 5 years. So 5 years में 9.5 तब होना चाहिए थे 18 kg. There is severe malnutrition there. तो and dose 1.5 tablet 1.5 tablet twice daily. Lopinavir 10 minutes pellets 3 caps. Viral load देखे तो काफी हाई था, वेट नाउ इंक्रीज टू 11 kg. 3 sessions step up adherence counseling were given and repeat viral load was still high. So do we diagnose treatment failure in this child and how to manage the child? So please write it in the chat box so that we can discuss in the later. So clinical assessment for acute opportunistic infection देखना है, सीवियर मेलन्यूट्रिशन है इसमें, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मेलन्यूट्रिशन इज एसेंशियल बिफोर डायग्नोसिस, इसमें मेलन्यूट्रिशन है बिकॉज 5 years है एंड वेट 11 kg जो कि 1.5 year का वेट है, वेटेज तो काफी अंडर वेट है। चेक विद डोज, अब 11 kg के अनुसार वो डोज ठीक ठीक ले रहा है कि नहीं, ये हमको देखना है। तो क्या वो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट के वन फेलिंग फर्स्ट लाइन फेल किया, सो हम लोग क्या देंगे,
जेडियल एलपी जेडियल जाइडोबिन बेस्ड यदि ट्रीटमेंट है विद लोपिनेविर रिटर्नोविर, तो हम लोग लेस देन 20 kg एएलडी के डोलोटेगेविर बेसिस से चेंज कर देंगे। इफ मोर देन 6 मंथ्स, ऑलरेडी आई सेड कि मोर देन 6 मंथ्स होगा, रूटीन चेक चेंज में सब्स्टिट्यूशन करने के टाइम भी हम लोग वायरल लोड देखेंगे, एंड इन केस ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर ऑल्सो। If 20 to 30, no problem. On all the cases, we go tolerable basis. But above 10 years and 30 kg, tenofovir. And below 20 kg, we'll give the 10 milligram tablet ka, according to weight band. But ALLPBR एंड हमको चेंज करना है फेलियर में, तो हमको जेडिल, हमारे ऑप्शन तो ज़्यादा नहीं है, हमारे पास ऑप्शन ओनली जाइडोबिडिन है, क्योंकि इफ बेबी इज लेस देन 30 kg, तो हमको देना क्या है ना, जेडिल भी देना है। तो जाइडोबिडिन के लिए हम लोग को हेमोग्लोबिन देखना है, मोर देन 9 ग्राम नो प्रॉब्लम, लेस देन 9 ग्राम देन व्हाट टू डू। सो लेस देन 9 ग्राम एल एल पी में है, तो हमको उसको तो एल एल पी चेंज करके एल डीटीजी देना है, एंड कॉज ऑफ एनीमिया शुड बी रूल्ड आउट, मे बी warm infestation, nutritional deficiencies, and other cause. तो treat करना है, and when it will be more than 9 gram, we can switch over to TLD. जेडल ई, अभी तो जेडल ई हम लोग दे नहीं रहे फेल, बट पेशेंट इज ऑन जेडल ई फेलिंग रेजिम, तो हम जो भी रेजिम हो, आइदर जेडल ई और लोपिनेविर रिटर्न, विल गो ऑन डोलोटेगेविर बेसिस ट्रीटमेंट, the same as previous one. एंड इन केस ऑफ एएलडी, तो जेडल इसमें भी वही है, हमने जेडल एलपी डोलोटेगेविर बेस्ड रेजिम में है, तो हम लोग लोपिनेविर पीआई रेजिम में चले जाएंगे फेलियर होने के बाद। तो अगेन एल है तो जाइडोबिडिन बेस करेंगे, देन वी हैव टू सी द हेमोग्लोबिन, सेम थिंग हियर, मोर देन 9 विल गो फॉर जेडल एलपीबीआर, लेस देन 9 will continue AL and add LPBR, but we'll go for the treatment of anemia, and when it's more than 9, we'll switch over to general LPBR. And TLD होगा, तो हम लोग जो TLD means 10 kg, more than 10 years and 30 kg, we will go for the attenuated with the जाइडोबिन based treatment. हम मल्टी एनएटी एक्सपोज है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टी एनएटी एक्सपोज है, तो टेनोफिल बेस्ड है, तो हेमोग्लोबिन मोर देन 9 नो प्रॉब्लम जेडल, लेस देन 9 देन क्या हम एल एल डी करेंगे, लेस देन 20 kg का। लेकिन मोर देन 20 to 30 kg और मोर देन 10 kg, सॉरी 10 years एंड 30 kg, तब हम लोग क्या करते हैं, इफ देयर इज हेमोग्लोबिन हाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीएल बेस था, हम लोग जाइडोबिन बेस करके डोलोटेगेविर दे दें। बट हेमोग्लोबिन इज लो, तो हम क्या करें, मल्टीपल एक्सपोज, तो एल एंड डोलोटेगेविर भी देंगे, उसके साथ हम लोग वी कैन कंटिन्यू the treatment. But if anemia is persisting or develop after giving जाइडोबिडिन, induced anemia हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, डीटीजी डोलोटेगेविर लोपिनेविर, सो डीटीजी हम लोग देंगे, इसके साथ रिसाइकल नॉन एजेटी बेस्ड एनआरटी बैकबोन देंगे। सो रिसाइकल करेंगे हम लोग, जो पहले ले चुके हैं, जो इवन दो देयर इज एन एक्सपोजर, विल अगेन स्टार्ट द नॉन एजेटी जाइडोबिडिन बेस नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका एनीमिया हो गया, तो हम लोग एबाकविर या अदर ड्रग्स। Again, same here, DTG plus L second line में दिए, तो थर्ड लाइन या मल्टीपल एक्सपोज्ड एनआरटी में हम लोग DTG LP में रिसाइकल नॉन जाइडोबिडिन बेस्ड ट्रीटमेंट। इंडिकेशन सेकंड लाइन वो ट्यूबरकुलोसिस आएगा, तो हम लोगों को पता है कि ट्यूबरकुलोसिस इधर एट द बिगिनिंग वो पेशेंट इज ऑन ART, we have to start ATT, or on tuberculosis diagnose HIV, or at the same time HIV and ART to be started, तो how you do, वो ऑलरेडी एंटीट्यूबरकुलर ड्रग, तो हम लोगों को ट्रीटमेंट DTG बेस्ड रेजिम देना है, एंड DTG बेस्ड रेजिम डोज होगा ट्वाइस डेली, एंड कितने दिन देना है, ट्वाइस डेली, 2 weeks आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ द रिपम्पिसिन, एंड इफ ऑलरेडी ऑन ATD एंड PI बेस्ड देना है, तो हम लोग को सुपर बूस्टिंग में लोपिनेविर रिटर्न में 1:1 रेशियो देना, बट दोनों एक साथ डायग्नोज हुआ है ART एंड TB, तो विल स्टार्ट द TB, वेट फॉर 2 weeks एंड देन विल स्टार्ट द ART। सो एडहेरेंस इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके बाद तो हमारे पास कोई दवा नहीं है फॉर मेडिसिन फॉर द पीडियाट्रिक पेशेंट्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडहेरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। Poor adherence of ART often results development resistance. Intensive adherence monitoring on second line is very important.
Infant and children dependent on adults, so caregivers to be trained and make them empowered and confident about taking care of the kids about the drugs and all. Child must be directly observed to swallow. ये भी हमने देखा है कि ग्रैंड माँ एंड या पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने तो टेबलेट दिया खिलाए थे, लेकिन वो क्या करता है ना, बच्चे मुंह के अंदर डाल दिया, जैसे मम्मी पापा या कैरियर मुंह घुमाए और बाहर फेंक दिया। तो ऑलवेज सी द बेबी हैज swallowed the medicine. It's very important. Poor adherence can also be due to the caregiver's issues. Use all adherence tools to improve the yeah, adherence. Indicate now monitoring same as we do in the private first start किए थे आरटी, वो सेकंड लाइन में भी वही मॉनिटरिंग करेंगे एंड ऑफ कोर्स हमारा इन्वेस्टिगेशन विल डिपेंड अपॉन एंड द सिम्टम क्वेश्चंस विल डिपेंड अपॉन द ड्रग वी आर यूजिंग। तो वो ड्रग जैसे लोग ने भी रिटर्न यूज कर रहे हैं, तो हम लोग पूछें डायरिया हुआ कि नहीं, लूज मोशन हो रहा है कि नहीं, अब कभी यूज कर रहे हैं तो कोई सेंसिटिविटी हुआ है कि नहीं, रैश है। सो विल ऑल द मॉनिटरिंग विल डिपेंड अपॉन द व्हाट आर द ड्रग्स आर डूइंग एंड रूटीन एज वी डू इन द वेरी बिगिनिंग। For an 8-year-old male child, body weight 23 kg, currently on ART means 8 years means 24 kg, ठीक है, weight ठीक है। DTG, LEP, we are, which are the following third line ART will prefer for 3 months after step of counseling. तो वो सेकंड लाइन में DTG LP है, तो हम लोग का थर्ड लाइन क्या होना है? JDLD, continue second line emphasizing the adherence ART. DTG, BDLP were existing in a table, none of the above. Anyone can answer this? So it will be DTG double dose and NTA backbone. All children now suspect second line failure, तो हम लोग क्या करेंगे? Poor treatment adherence और major opportunistic infection है कि नहीं rule out की, क्योंकि that will mimic treatment failure. तो poor treatment adherence, provide 3 sessions of EAC and will rule out why the intense clinical immunological biological monitoring. And if improvement, then we'll go for the continuous same visit. If there's no improvement, then what to do? Then refer to pediatric center of excellence. They will do the viral load. If it less than 1,000, then okay. If in the more than 10,000, more than 1,000, but less than 10,000, then as the balance is not so, it will take time in pediatrics. So we'll go the repeat plasma viral load after 3 months. And if it is still more, then we'll confirm failure. More than 10,000, we'll go for the third line disease. So third major second line failure, poor adherence, using modified adult formulation may be the reason, a late switching to single line may be the reason. So third line is really, I'm not going in detail because of the lack of time. Less than 6 years, less than 10, of course, AL lopinavir or ZL lopinavir based treatment, so we'll go for the control second line. Emphasis on the ART2, PI based failing regime hoga, तो हमारा dolutegravir exposed or not, it all depends on the what are the drugs already given. And if possible, go for the resistant testing, which have the high genetic barrier, so we'll continue lopinavir. More than 6 years and 10, more than or more than 6 to 10 years or 20 to 30 kg, so double dose dolutegravir ho jayega and existing inactive backbone. If more than 10 years, more than 30 kg, then TLD may have failure, second line. So we'll go again double dose BD dolutegravir. Again, we have to keep in mind that double dose dolutegravir does not mean we'll give 100 gram. We'll give 50 milligram 12 hours apart, twice daily. That is the double dose. So we'll give that 50 gram and another 50 gram to 12 hours apart. We'll write not BD, we'll write 12 hours apart. So, and with a opinion determined and existing NRTA backbone. Then again, of course, we'll follow up according to the guideline. So this is the last slide of my session. Following the structured follow-up protocol is critical to optimal management of child living with HIV and initiation on ART. Adverse events related to ART, though usually transient and minor, are the most important barrier for optimal adherence. That means if baby is not feeling the good taste, palate is not palatable, or the smell is not good, that is just minor side effect, but they will won't take. But if you overcome this by some modifications, then the adherence may be improved. Early and correct identification of treatment failure is vital in children for appropriately selecting the single line artery, because we do see long failure patient has failure for a long time, and they refer to us and after many months and years late referral is there in second line, and that will lead to the poor outcome.
Regular viral load test is essential for early identification treatment failure. As I already said, viral load will be high, then and there will be viral failure, then there will be immunological failure, then there will be clinical failure. So it will the last is the clinical failure. Poor adherence plays a significant role in the emergence of drug resistance and subsequent treatment failure in children with HIV. So, adherence is the main issue. I started with the slide and I ending with this slide with the adherence because poor adherence will cause the emergence of mutant virus and resistance to the multiple inactives. So, adherence is the uh, issue for pediatric treatment failure, and that should be taken care of with the utmost importance. So I stop here. Thank you for patience Thank you so sharing. If much, there are ma'am. any queries? Any queries from the participants, please feel free to unmute your mic. Mic access has been given to all. Is there any question? Good afternoon, all of No you. questions in the chat box, ma'am. Okay. Any So questions from the participants? any queries? Any things? You want to comment? Any query? Anything you want to know? Want to ask or you want to comment? Ma'am, I don't think there are any questions. Thank you Okay. so much for facilitating this session. Thank you to all the participants for patient listening. Wishing you all a very happy Diwali. Yes. Happy Diwali to all. Thank you, ma'am. We'll conclude the session now. Yeah. Will you can mail him? No. Yes, ma'am. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Happy Thank you, Diwali. ma'am.